حضرت جناب عمر کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے جس کا نام ہیثم تھا نے عرب کے قبیلہ جہنیہ کی ایک نوجوان خوبصورت اور پاک دامن لڑکی سے نکاح کیا، لیکن نکاح کرنے کے بعد ہیثم کی زوجہ کے ہاں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کی بجائے محض 6 مہینے میں ہی ایک نومولود بچہ پیدا ہو گیا۔ جب ہیثم نے یہ دیکھا کہ اس کی زوجہ نے تو 9 مہینے میں بچہ پیدا کرنے کی بجائے صرف 6 مہینے میں ہی بچہ پیدا کیا ہے تو ہیثم کا وجود کانپ اٹھا اور ہیثم غصے کے مارے اپنی زوجہ پر چلا چلا کر بدکاری کا الزام لگانے لگا، جس پر ہیثم کی زوجہ نے اسے کہا کہ اے ہیثم، وہ اللہ کے جس نے اس نومولود بچے کو میرے پیٹ میں 6 مہینے تک زندہ رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ جب ہیثم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو ہیثم کو اپنی زوجہ کی اس بات پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر ہیثم اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی زوجہ کو لے کر حضرت جناب عمر کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر کہنے لگا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس خاتون سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کرنے کے صرف 6 مہینے ہی بعد اس خاتون نے ایک نومولود بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زوجہ میرے بچے کو 9 مہینے میں پیدا کرنے کی بجائے صرف 6 مہینے میں پیدا کر دے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لہٰذا آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ آخر یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا۔ حضرت جناب عمر نے یہ سارا معاملہ سنتے ہی ہیثم کی زوجہ سے یہ پوچھا کہ اے خاتون، یہ جو بات تیرا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا کیا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے یا پھر جھوٹ؟ تو اس سوال پر ہیثم کی زوجہ نے نہایت ہی ادب اور احترام سے یہ کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اپنے اس بچے کو 6 مہینے میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔ دوستو، یاد رہے سرزمین عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی خاتون کے ہاں 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو عرب کے لوگ اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ہی زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے۔ دوستو، یہ لوگ زندہ زمین میں اس وجہ سے دفناتے تھے کیونکہ عرب کے لوگوں کے ہاں 6 مہینے کا بچہ حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ مانا جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے ہی حضرت جناب عمر نے بھی عرب کے لوگوں کے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاتون سے یہ کہا کہ اے خاتون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے ہاں صدیوں سے یہ اصول چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عرب کے لوگ اس بچے کو حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ مانتے ہیں؟ لیکن اے خاتون، اب عرب کے لوگوں کی ان روایات سے بلند اللہ کا قرآن اور حضرت رسول خدا کا فرمان ہے۔ اب اگر تم اللہ کے قرآن یا پھر حضرت رسول خدا کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ صرف 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت بے گناہ رہا کر دوں گا۔ لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر تمہارے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں کہ جب تک تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی اس خاتون نے حضرت جناب عمر کا یہ حکم سنا تو وہ خاتون دربار میں سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی اور زمین پہ گر کر فریاد کرنے لگی کہ اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس دلیل سے میں یہ بات ثابت کر سکوں کہ صرف 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ مجھ بے گناہ خاتون کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اللہ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔ بس اس خاتون کا یہ کہنا ہی تھا کہ سپاہی اس خاتون کو مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں لے جا کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو،
इस खातून ने 6 महीने में एक बच्चा पैदा किया है। लिहाजा खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म के मुताबिक इस खातून को जिनाह की सजा के तौर पर सीने तक जमीन में दफनाकर इसके मुंह पर उस वक्त तक पत्थर मारे जाएंगे कि जब तक ये खातून उन पत्थरों से हलाक ना हो जाए। लिहाजा आए लोगो, इस खातून से इबरत हासिल करो ताकि तुम सब लोग भी बदकारी और बेहयाई जैसे गुनाहों से दूर रह सको। बस जैसे ही सिपाहियों का ये ऐलान हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने सुना तो आप फौरन उस खातून को लेकर हजरत जनाब उमर के दरबार में पहुंचे और दरबार में पहुंचते ही कहने लगे कि ऐ जनाब उमर, क्या आप जानते हैं कि आप इस बेगुनाह खातून को सजा देकर कुरान में मौजूद अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के कुरान के मुताबिक इंसान का बच्चा सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी पैदा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ तो ये वाकया 100% एक सच्चा वाकया है, क्योंकि इस वाकया का जिक्र आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की मोतबर तरीन किताबें जैसे कि मोता इमाम मालिक की हदीस नंबर 1531, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की हदीस नंबर 13443, 13444, सुनन अल कुबरा लिल बहीकी की हदीस नंबर 15549, 15551, किताबुल इरशाद और किताबुल इरशाद के अलावा बिहारुल अनवार में तो कई जगहों पर इस वाकया का जिक्र साफ साफ मौजूद है। अहादीस की मोतबर तरीन किताबों के अलावा कुरान की सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 15 की तफसीर में तफसीर इब्न कसीर और तफहीमुल कुरान में भी ये वाकया वाज़े तौर पर मौजूद है। दोस्तों, ये सब हवाले मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात मालूम हो सके कि ये वाकया मैं आपको किसी तारीख की किताब से नहीं बल्कि अहादीस की मोतबर तरीन किताबों से सुना रहा हूँ। लिहाजा इस वजह से ये बात याद रहे कि ये वाकया 100% एक सच्चा वाकया है। बस फिर जैसे ही हजरत जनाब उमर ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से ये सुना कि कुरान के मुताबिक तो सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी हलाल ज़ादा बच्चा पैदा हो सकता है तो आप हैरान होकर कहने लगे कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते तो हमारी जिंदगी गुजर चुकी है, लेकिन सारे के सारे कुरान में मैंने तो आज तक कहीं पर ये नहीं पढ़ा कि इंसान का बच्चा सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी पैदा हो सकता है। लिहाजा ऐ जनाबे अली इब्न अबी तालिब, अगर आपने कुरान से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान का बच्चा सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी पैदा हो सकता है तो मैं अभी इसी वक्त इस खातून को बेगुनाह रिहा कर दूंगा। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने यह फरमाया कि ऐ जनाबे उमर, तो फिर अब आप ध्यान से सुने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 233 और सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 में ये इरशाद फरमाता है कि और जो माएँ दूध पिलाने की मुद्दत को पूरा करना चाहती हैं तो वो माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल यानी 24 महीने तक दूध पिलाएं। दोस्तों, कुरान की इस आयत में यहाँ पर ये जो कहा गया है कि माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं, तो याद रहे कि 2 साल 24 महीनों के बराबर होते हैं, क्योंकि 1 साल 12 महीने के बराबर होता है तो 2 साल 24 महीने के बराबर होते हैं। लिहाजा इस वीडियो में मैं आगे जो भी बातें आपको बताऊंगा तो उन बातों को सही तरह से समझने के लिए आपने इस बात को याद रखना है कि कुरान की इन दोनों आयत के मुताबिक अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है तो बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल यानी 24 महीने तक है। इसी तरह कुरान की इन दोनों आयत को पढ़ने के बाद हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने कुरान की सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 15 को पढ़ा कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, और हमने इंसान को ये हुक्म दिया है कि वो अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करे, और इसकी माँ ने बहुत ही तकलीफ के साथ इसे अपने पेट में रखा और फिर बहुत ही तकलीफ के साथ इसे जन्म दिया, और इंसान के बच्चे के हमल का जमाना और दूध पिलाने का वक्त 30 महीने तक है। दोस्तों, इस आयत में यहाँ पर ये जो कहा गया है कि हमल का जमाना, तो यहाँ पर ये बात याद रहे कि हमल का जमाना या फिर हमल का वक्त
उस वक्त को कहते हैं कि जो वक्त एक बच्चा अपनी माँ के पेट में गुजारता है। इसी तरह कुरान की इस आयत में 2 जमानों का जिक्र किया गया है, एक हमल का जमाना है और दूसरा बच्चे को दूध पिलाने का जमाना है, और इन दोनों जमानों का वक्त 30 महीने तक है। दोस्तों याद रहे, कुरान ने हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला ये है कि हमल का जमाना जमा बच्चे को दूध पिलाने का जमाना बराबर हैं 30 महीनों के। अब जैसा कि मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि आपने इस बात को याद रखना है कि कुरान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 233 और सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 के मुताबिक बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल यानी 24 महीने तक है। अब अगर हम इन 24 महीनों को दूध पिलाने की मुद्दत के नीचे लिखते हैं तो इस बात से हमें ये तो मालूम हो जाता है कि बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने तक है। लेकिन दोस्तों अब पीछे रह जाता है हमल का जमाना। तो दोस्तों याद रहे कि हमल के जमाना की मुद्दत सारे के सारे कुरान में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। लिहाजा चूंकि हमल के जमाना की मुद्दत सारे के सारे कुरान में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो हमल के जमाना की मुद्दत को जानने के लिए हमें इन दूध पिलाने के 24 महीनों में इतने महीने जमा करने होंगे कि वो महीने 30 महीने के बराबर हों। लिहाजा जैसा कि अगर हम दूध पिलाने की इन 24 महीनों में हमल का 1 महीना जमा करते हैं तो बनते हैं 25। अगर 24 महीने में 2 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं 26। अगर 24 महीने में 3 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं 27। अगर 24 महीने में 4 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं 28। अगर 24 महीने में 5 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं 29। और अब अगर हम 24 महीने में 6 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं पूरे 30। बस जैसे ही दरबार में मौजूद सब लोगों ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब का ये इल्म देखा तो सब लोग हैरान रह गए और दरबार में हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही हजरत जनाब उमर ने भी ये देखा कि हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने तो वाज़े तौर पर कुरान की इन आयात से इस बात को साबित किया है कि सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी हलाल ज़्यादा बच्चा पैदा हो सकता है, तो फिर आपने सबसे पहले उस बेगुनाह खातून को रिहा किया और फिर आप दरबार में खड़े होकर सबके सामने ये कहने लगे कि ऐ अली, अगर आज तू ना होता तो मैं उमर हलाक हो जाता। अगर आज मैं इस बेगुनाह खातून को सजा देकर कत्ल कर देता तो यकीनन कयामत के दिन अल्लाह मुझे वही सजा देता कि जो सजा एक कातिल को दी जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि ऐ अली, तूने मुझ उमर को हलाक होने से बचा लिया। बस हजरत जनाब उमर की ये बात सुनकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब भी दरबार में आवाज़े बुलंद ये फरमाते हैं कि आए लोगो, याद रखना अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है और कुरान अली के साथ है और कुरान अली के साथ।